very warm welcome to everyone. It is my distinct honor and privilege to extend my heartfelt gratitude to each and every one of you and for your presence in our guest lecture. I would like to express my sincere appreciation to our esteemed head of department, Dr. Sachin Khurana sir, for his unwavering support, encouragement and dedication to fostering development of our students. Now, I would like to extend my deep gratitude to our esteemed event coordinator in charge, Ms. Komal Purva ma'am, Ms. Radhika Sharma ma'am, and all faculty members. Your constant guidance and encouragement have played a pivotal role in making this event a reality, and your presence here today is truly valued. Moving forward, today we have with us an exceptional personality in the world of design, blockchain, and crypto education. Someone who has been shaping this industry for over 11 years with his creative vision and expertise. Let me introduce first you to Harmanpreet Singh, a highly skilled graphic designer, UI/UX expert, and blockchain visualizer. He is also the founder of CryptoCa Group, where he is revolutionizing crypto content and blockchain education, creating awareness through social media, mentoring people, providing consultation on crypto investments, opportunities, and Web3 applications. But he is not alone. He is here with his incredible team. Mr. Aman sir, a blockchain and crypto expert with deep knowledge in Web3 technologies and decentralized systems. Ms. Dilpreet ma'am, a crypto marketing strategist specializing in social media growth, affiliate marketing, and brand promotion. She has helped multiple Web3 projects scale through strategic online campaigns and powerful networking. Mr. Harat sir, a tech visionary experienced in developing multiple successful Web3 projects. Together, they are on mission to educate, innovate, and transform the way we understand blockchain and crypto. So get ready to dive into a power-packed session filled with knowledge, insights, and real-world opportunities of blockchain and crypto. So let's give them a huge round of applause. सबसे पहले मैं अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की फैकल्टी और मैनेजमेंट का दिल से थैंक यू कहना चाहूँगा, जिन्होंने आज हमें आप सबके सामने यहाँ आने का मौका दिया। और साथ ही मैं इस हॉल में बैठे सभी स्टूडेंट्स का मैं वेलकम करना चाहूँगा, जो इस एक्साइटिंग टॉपिक के लिए आज सब यहाँ आए हैं। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जो फ्यूचर का नास ऑफ रेवोल्यूशन बन चुकी है, बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी। स्टूडेंट, इस सेमिनार का प्राइमरी गोल है आपको गाइड करना, एजुकेट करना और अवेयर करना अबाउट द क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन। अभी हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ब्लॉकचेन कैसे काम करती है, इसका प्राइमरी रोल क्या है, और सेकंड हम इसमें क्रिप्टो में आप कैसे साइड हसल्स कर सकते हो अपना टाइम इन्वेस्ट करके, और कुछ टाइम जो आप इन्वेस्ट करोगे वो उसमें आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिलेंगे, जो रिवॉर्ड्स आप अपना मतलब क्रिप्टो जर्नी स्टार्ट कर सकते हो उस रिवॉर्ड से। और इस क्रिप्टो में जैसे हम आप सबको पता है, जैसे जहाँ बात पैसों की आ जाती है तो वहाँ पे स्कैम्स होना नॉर्मल बात है, और क्रिप्टो में भी बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं, और उसकी भी बातें हम यहाँ पर आपको समझाएंगे कि कौन कौन से स्कैम्स चल रहे हैं और उन स्कैम से हम कैसे बच सकते हैं। तो हमारे की टॉपिक्स हैं आज के, ब्लॉकचेन एंड बिटकॉइन, उसके बाद है वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो करेंसी, स्कैम्स एंड सिक्योरिटी, और साइड हसल्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। फ्रेंड्स, आप सभी स्टूडेंट्स ने कभी पहले ब्लॉकचेन और क्रिप्टो के बारे में सुना हुआ है? किस ने कोई बता सकता है? कोई रेस योर हैंड, मतलब किस ने सुना हुआ है और क्या सुना हुआ है? मतलब ब्लॉकचेन क्या होता है, क्रिप्टो क्या होता है? किसी ने नहीं सुना? यस तो सबने बोला था आई थिंक। किसी ने नहीं सुना हुआ? आपने यस बोला था शायद, नहीं आपके आगे नहीं। तो आजकल ब्लॉकचेन का नाम वैसे हर जगह पर सुनने को मिल रहा है, लेकिन आप लोग जैसे कह रहे हो कि नहीं आपने सुना, लेकिन ब्लॉकचेन होता क्या है, कैसे काम करता है, और ये इतना सिक्योर क्यों बोला जाता है, तो मैं आपको बहुत ही एक सिंपल वे में आपको आज समझाऊंगा कि कैसे ब्लॉकचेन काम करती है। और बिटकॉइन क्या होता है? बिटकॉइन फर्स्ट 2009 में सतोशी नाकामोटो नाम के बंदे ने क्रिएटेड किया था, और जो ब्लॉकचेन है उसका फर्स्ट यूज़ केस जो बना था वो बिटकॉइन की फॉर्म में बना था। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जो डिजिटल हम एक दूसरे को लेन देन में काम आ सकती है। अब हम समझते हैं कि ब्लॉकचेन कैसे काम करती है। ब्लॉकचेन एक डिजिटल नोटबुक के तरह काम करती है,
जो पब्लिक है, सिक्योर है और कोई भी बदल नहीं सकता। ये एक चेन ऑफ ब्लॉकचेन है जिसमें ब्लॉक में कुछ भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम ऐड कर सकते हैं। सोचिए, एक एग्जांपल के तौर पे सोचिए, एक पब्लिक डायरी है जिसमें जो लिख दिया वो ऐड हो गया, उसको कोई भी डेटा को हम रिमूव नहीं कर सकते। जैसे कोई भी अगर हम डायरी में कुछ लिखते हैं तो आप नेचुरली हम उसको हम एडिट भी कर सकते हैं, मतलब फाड़ सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो अगर हम ब्लॉकचेन की डायरी में अगर कुछ ऐड कर दिया कोई भी डेटा किसी भी फॉर्म में, तो वो ना कोई भी डिलीट कर सकता है ना रिमूव कर सकता है कोई भी बंदा, ठीक है। वो बहुत सिक्योर हो जाता है। इसकी ना 3 फीचर्स होते हैं उसमें, सिक्योरिटी, डिसेंट्रलाइज एंड ट्रांसपेरेंसी। सिक्योरिटी में आ जाता है, जैसे वही मैं अभी आपको बता रहा है, वंस वी स्टोर्ड एनी डेटा इन द ब्लॉकचेन, कोई भी उसको रिमूव नहीं कर सकता। और डिसेंट्रलाइज का मतलब आ जाता है कि जैसे कि कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी अथॉरिटी उसको कंट्रोल नहीं करती। ब्लॉकचेन को पूरा नेटवर्क मिलके कंट्रोल करता है। जैसे अभी हम हॉल में सारे लोग बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, सब कंट्रोल करते हैं ब्लॉकचेन को। कोई एक पर्सन या कोई एक इंस्टीट्यूट उसको कंट्रोल नहीं करता। और थर्ड आ जाता है हमारा ट्रांसपेरेंसी। सब लोग उसको देख सकते हैं। अगर कोई डेटा किसी ने एक ब्लॉक में ऐड कर दिया, एग्जांपल के तौर पे कोई भी डेटा हमने ऐड कर दिया ब्लॉक पे, तो वो डेटा आप सब लोग देख सकते हो कि उस ब्लॉक डायरी के अंदर कौन सा डेटा हमने डाला है, ताकि आप सब लोग वेरीफाई कर सको कि ये डेटा एक्चुअल में जो डाला है वही है या मतलब किसी ने चेंज कर दिया। तो इससे क्या होता है कि सिक्योरिटी बढ़ जाती है। मतलब कि आप लोग अगर जो डेटा किसी ने ऐड करा था, तो अगर आपको उसको देख सकते हो कि मतलब वही डेटा उसमें ऐड हुआ है, तो एक अच्छी चीज़ ही है ना कि ट्रांसपेरेंसी होगी सिस्टम में, तो ही वो सिस्टम आगे, करप्शन कम होगी उस सिस्टम में, ठीक है ना, कि डेटा चेंज नहीं हो सकता उसमें। ब्लॉकचेन के स्ट्रक्चर में ये 3 चीज़ें होती हैं, डेटा, हैश और प्रीवियस हैश। डेटा में अगर, और जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये सारी बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर समझा रहा हूँ कि बिटकॉइन जिस ब्लॉकचेन के ऊपर बना था उसमें डेटा क्या करता है। डेटा का काम है कि जैसे एक ट्रांजैक्शन की किसी को, जैसे हम यूपीआई भी करते हैं या वो ट्रांजैक्शन करते हैं, उसी ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं कि बिटकॉइन का जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं, और डेटा का होता है कि किस बंदे ने किसको ट्रांसफ़र किया था, कितने पैसे अमाउंट किया था, किस टाइम पर किया था, ये एक डेटा बताता है हमें। इसमें सेकंड आता है हैश। हैश होता है जैसे कि एक सबकी यूनिक आइडेंटिटी होती है, मतलब फिंगरप्रिंट होता है हमारा। तो वैसे ही हैश भी काम करता है कि जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो हैश क्रिएट कर देता है ऑटोमेटिक। तो वो हैश कभी भी मतलब बदल नहीं सकते आप। जो हैश क्रिएट हो गया एक ट्रांजैक्शन के लिए, वो हैश वही रहेगा, कोई भी उसको एडिट या कुछ भी नहीं कर सकता। अगर हैश को चेंज करते हो तो वो अगर कुछ भी डेटा को चेंज करते हो तो हैश चेंज हो जाता है। जैसे अभी आप सब स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये फर्स्ट ब्लॉक है, सेकंड ब्लॉक है और थर्ड ब्लॉक है। फर्स्ट ब्लॉक का हैश आपके सामने आ रहा है 1G8F। तो जब सेकंड ब्लॉक क्रिएट हुआ था इसका न्यू हैश बन गया और प्रीवियस हैश आ गया जो इसका लिखा हुआ था। और थर्ड वाले का भी यहाँ पे प्रीवियस हैश आ गया जो इसका क्रिएट हुआ था, और इसने इसका न्यू क्रिएट कर दिया यहाँ पे। लेकिन अगर आप देखोगे फर्स्ट जो ब्लॉक क्रिएट हुआ है उसका हैश प्रीवियस कुछ भी नहीं है, तो उस ब्लॉक को हम कहते हैं जेनेसिस ब्लॉक। और अगर समबॉडी को ये टेम्परिंग करना चाहे उस ब्लॉक में या ब्लॉक चेन में या उस डेटा में कि मैं मतलब छेड़छाड़ करना चाहता हूँ उस डेटा को, जैसे कोई करप्शन करने के लिए, तो अगर कोई भी टेम्परिंग करना चाहे भी तो वो पहले तो हैश चेंज हो जाएगा उसका और उसी टाइम, जो कि नेक्स्ट मैं आपको बताया था कि ये ट्रांसपेरेंसी है इसमें, कि वेरीफाई कर सकते हो आप लोग कि जो अगर जब आप वेरीफाई करोगे यहाँ पे तो प्रीवियस हैश इसका आ रहा है ये, और जब वो किसी ने टेम्परिंग करी इस ब्लॉक में तो इसका हैश यहाँ पर चेंज हो गया ऑटोमेटिक। और वैसे भी ये पॉसिबिलिटी नहीं है इसमें। जैसे ही न्यू ब्लॉक यहाँ पर न्यू ब्लॉक क्रिएट होगा कोई भी, वो सभी के साथ डिवाइड किया जाएगा, नेक्स्ट सभी के पास वो ब्लॉक पहुँच जाएगा। जैसे मैं कह रहा था आप सभी हॉल में बैठे हुए हो, कुछ भी चेंजेस होता है वो सबके कंप्यूटर पे शो होना शुरू हो जाएगा, और आप लोग वेरीफाई कर सकते हो कि जो भी ब्लॉकचेन पर चेंजेस हो रहे हैं कि वो एक्चुअल में जो चेंजेस किए हैं वो चेंजेस हो रहे हैं। अभी इसकी कुछ एप्लीकेशंस है। अभी हमने ब्लॉकचेन की सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन पे बात करी है बिटकॉइन की, जो कि क्रिप्टो करेंसी की फॉर्म में बना हुआ है, और ये सभी इंडस्ट्रीज में चल सकती है ब्लॉकचेन। सप्लाई चेन, हेल्थ केयर, बैंकिंग एंड फाइनेंस, वोटिंग सिस्टम,
तो अभी आपने ब्लॉकचेन को थोड़ा सा समझा है, तो मतलब कोई क्वेश्चन है आपका ब्लॉकचेन को लेके? अभी जो किसी का भी कोई क्वेश्चन या कोई ना समझ लगा हो, कोई भी एक पर्सन, मतलब कि अभी जो थोड़ा सा समझा है आपने ब्लॉकचेन क्या होता है, कैसे वर्क करती है। टेक्नोलॉजी जो ब्लॉक्स को यूज करती है जो कि सिक्योर होते हैं। एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से इंटरकनेक्टेड होता है, स्पेसिफिक हैश जिसका हम हैश चेंज नहीं कर सकते। उसमें जो भी डाटा होता है वो हम चेंज नहीं कर सकता, जब कोई हैकर वगैरह उसको रिट्रीव नहीं कर सकता। वेरी गुड, अभिषेक कुमार। देखिए आप, थैंक यू। जैसे अभी हम एक यूज केस पे बात करते हैं, वोटिंग सिस्टम। वोटिंग तो मतलब सब करते हैं, आप सबका तो बना, वोट तो डाली होगी सबने। तो जैसे आप सबको पता है कि आजकल न्यूज़ में भी आता है ईवीएम हैक हो गया, तो कुछ लोग कहते हैं कि यार हम वोट डालने गए हैं तो हमारा वोट ऑलरेडी पहले ही पड़ गया है। तो कुछ लोग कहते हैं कि वोट डाल के आए हैं, आपको पता थोड़ी है कि अगर आपने किसी ने एग्जाम्पल कोई आम आदमी पार्टी को डालता है या बीजेपी को या कांग्रेस को, किसी को भी डालता है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि जिसको आप डाल के आए उसी पे वोट पड़ा है? कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि आपने कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है सिस्टम में। तो ये जो ब्लॉकचेन है वो एक्चुअल में बनी इस वजह से आई मार्केट में है कि आप लोग को ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी। अगर आप जिसको वोट डाल के आए हो, घर आकर आप चेक कर सकते हो कि एक्चुअल में वोट उसी को गया है। अगर ये सिस्टम ब्लॉकचेन के ऊपर सारा वोटिंग हो जाए तो सारा सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी और करप्शन खत्म हो जाएगी बिल्कुल ही। बैंक एंड फाइनेंस में हो सकती है, हेल्थ केयर में हो सकती है, हाँ, मतलब कि सारी जगह से फ्रॉड खत्म हो जाएगा। तो आप मतलब कौन सी स्ट्रीम से हो सारे? बीसीए से हो। तो आपने आगे सोचा किस में जाना है, मतलब क्या करना है आपने? प्लान्स है कुछ, कोडिंग में जाना है, किस में जाना है, क्या करना है? वेरी गुड। ये जो आप देख रहे हो ब्लॉकचेन, ये सारी कोडिंग और प्रोग्रामिंग के ऊपर है। तो मतलब आप अभी तक C++, जावा मतलब वगैरह यूज कर रहे हो, और जो हम ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं, ये एडवांस टेक्नोलॉजी है कि अगर आप इसको सीखते हो तो आप अब से 10-20 साल आगे पहुंच जाओगे। ये आगे ये जो टेक्नोलॉजी है यूज होने वाली है हर सिस्टम में। कि अभी क्या है कि सभी को रिक्वायरमेंट है डिसेंट्रलाइज होने की। सेंट्रलाइज सिस्टम में करप्शन है, फ्रॉड है, डाटा जो होता है उसमें कोई भी हैक कर सकता है। जैसे बताया इन्होंने सप्लाई चेन में क्या है कि प्रोडक्ट्स जो आते हैं, आप ब्रांड के किसी के प्रोडक्ट्स लेते हो तो उसमें क्या होता है, कॉपी हो जाती है। तो अगर ब्लॉकचेन पे वो सिस्टम आ गया तो उसमें कोई भी कॉपी नहीं कर सकता उसकी। तो इसलिए जो आगे आने वाली जनरेशन है वो ब्लॉकचेन की है। तो अगर आप अभी से इसको थोड़ा सीखना स्टार्ट करोगे तो आप मतलब आज से 10-20 साल आगे पहुंच जाओ। बिल्कुल, और इसमें इतनी ग्रोथ है, मतलब आपको अच्छे पैकेजेस मिलेंगे वो आप सोच भी नहीं सकते, जो कि स्टार्टिंग की 20 लाख से 25 लाख से पैकेज स्टार्ट होते हैं इसके। तो अभी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम क्रिप्टो करेंसी। तो जो कि उसका फर्स्ट यूज केस था हमारा ब्लॉकचेन का, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो के बारे में किसी को कुछ नॉलेज? क्रिप्टो, बिटकॉइन, थोड़ा उच्ची बच्चा नहीं पता लगा। NFT मतलब जितना होगी NFT मतलब वो ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰੀ ਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਗੜੀ ਆ ਗਰੋਥ ਕਰਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ NFT ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਟ੍ਰੈਜਰ NFT। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੈਜਰ NFT ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। क्रिप्टो एक डिजिटल करेंसी है जो ब्लॉकचेन पे बेस्ड होती है। मतलब ना कोई नोट होता है, ना कोई कॉइन है, सारा ही वर्चुअल करेंसी है। और नॉर्मल जो हमारी ट्रेडिशनल करेंसी अभी चल रही है जो कि नोट्स, पैसे हैं, और उसमें और क्रिप्टो में क्या डिफरेंस है? नॉर्मल करेंसी में उसका अल्टीमेटली कोड है गवर्नमेंट के पास, लेकिन जो क्रिप्टो उसका कोई कोड नहीं है, अल्टीमेटली ऑल ओवर मतलब फैली हुई है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं हमारे पास। तो मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही करूंगा कि अल्टीमेटली मैं जानना चाहूंगा इसकी ट्रांजैक्शन सेटलमेंट कैसे होती है क्रिप्टो। जैसे मेरे पास में बिटकॉइन है, मेरे पास 10 लाख का बिटकॉइन है, एक अल्टीमेटली मैंने इसको सेल किया है या कुछ भी बेचा है, जी डिमांड करी कि मैंने अल्टीमेटली परचेज करना है, ठीक है, मैंने अपनी ओर से सेल की ट्रांजैक्शन कर दी, निकल के बाहर आ जाएगा कि आपने जब उनको सेंड किया तो वो कहाँ उसको यूज कर रहे हैं, अभी उन्होंने होल्ड किया हुआ या नहीं किया हुआ, वो सारा ऑनलाइन डेटा आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, वो उधर रिकॉर्ड हो रही है ब्लॉकचेन पे।
जो अगर आप बिटकॉइन की बात कर रहे हो वो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे होगी, अगर उसमें और भी कॉइन्स है जैसे एथेरियम है, सोलाना है, अगर आपको पता होगा तो वो उसकी ब्लॉकचेन पे सेव होगी, ठीक है। लेकिन वो सारा ऑन चेन है, आप कुछ भी 1 सेकंड के लिए भी जाके हर एक चीज़ ट्रांजैक्शन वहाँ आप देख सकते हो। कोई भी रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि वो हाइड है या हिडन है, ओपन नहीं होगा। इवन अगर आपको पता होगा सतोशी नाकामोटो की हम बात कर रहे थे ना स्टार्टिंग में, तो वो 2009 में उन्होंने क्रिएट किया था। जब वो क्रिएट किया था सतोशी नाकामोटो ने तो कुछ 21 मिलियन कॉइन्स क्रिएट हुए थे बिटकॉइन के, और 21 मिलियन कॉइन की सप्लाई क्रिएट करी थी उन्होंने, और 21 मिलियन में से 1 मिलियन उन्होंने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करे थे ऑन द स्पॉट। उन्होंने जो ब्लॉकचेन में उन्होंने अपनी माइनिंग करी थी, तो वो 10 लाख कॉइन बनते हैं। 10 लाख कॉइन उनकी अकाउंट की वैलेट में आज भी पड़े हुए हैं, जो कि रिसेंटली अभी ट्रैक हुए हैं, पहले ट्रैक नहीं हुए थे जो आप अभी कह रहे हो। हाँ, तो सतोशी नाकामोटो के पास 10 लाख बिटकॉइन है वो बोले, तो जो वो आज ट्रैक हुए ऑन चेन पे चेक कर सकते हो। तो अभी हम देखते हैं कि नॉर्मल पैसा वर्सेस क्रिप्टो, मतलब क्या डिफरेंस है, मेजर डिफरेंट क्या है। कि जो भी आपका नॉर्मल पैसा है वो कंट्रोल कौन करता है, बैंक्स करते हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, जब चाहे वो नया पैसा बना देते हैं अगर मार्केट को नीड होती है तो। लेकिन क्रिप्टो को कोई भी कंट्रोल नहीं करता, कोई भी मिडल मैन नहीं होता, ऑन चेन होता है, ब्लॉक चेन पे होता है, और हर क्रिप्टो की अलग ब्लॉक चेन है। बिटकॉइन की अलग है, इसके बाद जो नेक्स्ट कॉइन होगा एथेरियम, सोलाना, मैं आपको बताता हूँ, सबकी अलग अलग ब्लॉकचेन है। और सेकंड इसमें होता है कि ट्रांसफ़र टाइम, जो कि नॉर्मल करेंसी का ट्रांसफ़र टाइम होता है बैंक सार। अगर आप कोई चेक या कोई अपना कोई डिपॉजिट करते हो, समटाइम क्या होता है कि उसको टाइम लगता है दूसरे बंदे के अकाउंट में जाने में। जैसे एग्जांपल हम यूएस में ट्रांसफ़र करते हैं ग्लोबली, नॉर्मल इंडिया में तो आपका यूपीआई वगैरह भी चल जाता है, लेकिन अगर हम यूएस भेजना है, यूके में भेजना है, सिंगापुर भेजना है, तो पहले आपका सारा पैसा जाता कहाँ पर है, पहले जाता है आपके बैंक में, ट्रांजैक्शन जाती है आपकी। उसके बाद वो मिडल मैन जो होते हैं, पेपाल, वीज़ा, मास्टर कार्ड, उनको वो ट्रांजैक्शन आगे करते हैं। फिर वो वाले जो आपके जो रिसीवर बैंक है बंदे का, अगर यहाँ से एसबीआई को भेजा, उधर उनका बैंक ऑफ अमेरिका हुआ, तो वो उसके बैंक के पास जाएगा, फिर आप उनको जाएगा जो जिस बंदे को उन्होंने भेजने हैं। लेकिन ये सारा प्रोसेस करते करते टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, मतलब हो सकता है कि 2 दिन में भी हो जाए, हो सकता है 5 दिन भी लग जाए। लेकिन बिटकॉइन में क्या है कि आप अभी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी वो बंदा बैठा हुआ है, विद इन फ्यू सेकेंड और मिनट, डिपेंड ऑन ब्लॉकचेन टू ब्लॉकचेन। कुछ ब्लॉकचेन ऐसी है विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड, मतलब पलक झपकते ही आपका वो ट्रांजैक्शन हो जाती है। लेकिन बिटकॉइन में भी कुछ 1-आधा मिनट लग सकता है, डिपेंड ऑन ब्लॉकचेन और ट्रैफिक काइंड ऑफ, ठीक है ना। और थर्ड हमारा आता है फेक नोट्स। जैसे कि वही मैं बता रहा था कि ब्लॉकचेन में और मतलब नॉर्मल करेंसी में क्या है कि हम जितने मर्जी नोट क्रिएट कर दें, या और आपको पता है ये डुप्लीकेसी भी आ रही है नोट्स की, 500 के नोट में, पहले 2000 में भी थी और भी थी। मतलब फेक नोट्स मार्केट में आते थे, कितने भी आते थे, कोई भी क्रिएट कर लेता था। मतलब जैसे आप कहते हैं पाकिस्तान से आ रहे हैं नोट या कहाँ से भी आ रहे हैं, तो वो नोट बनते थे। लेकिन क्रिप्टो में क्या है कि ये इम्पॉसिबल, कि जितने ब्लॉकचेन ने क्रिएट कर दिया बिटकॉइन, अगर मैं वही बता रहा था 21 मिलियन बिटकॉइन बने हैं, और वो 21 मिलियन ही रहेंगे, कम हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकते, एक भी ज़्यादा नहीं बना सकता कोई, ठीक है। सर हाँ, नेक्स्ट करना। हाँ, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज कौन कौन सी हैं। पॉपुलर में हमारी फर्स्ट क्रिप्टो जो है बिटकॉइन है, सेकंड एथेरियम जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बनी थी, थर्ड है बाइनांस, इसके बारे में सुना होगा कुछ लोगों ने, BNB स्मार्ट चेन। यस, किसने बोला, क्या सुना, प्लीज स्टैंड अप। एक्सचेंज, वेरी गुड, मतलब वो वहाँ से आप क्या क्रिप्टो वगैरह बाई कर सकते हैं क्या, वेरी गुड। तो आपने वहाँ आईडी वगैरह मतलब बनाई हुई है, ठीक है, बिल्कुल। बाइनांस, और ये टोकन उसी का टोकन है बाइनांस चेन का, जो कि थर्ड नंबर पे है हमारा, और फोर्थ पे है रिपल XRP के नाम से। ये इनके शॉर्ट नेम्स है और ये उनकी कंपनी का नेम है।
और फोर्थ है चेन लिंक, फिर आता है सोलाना। ये जो सोलाना है ना, ये सबसे फास्टेस्ट अभी का माना जाता है ट्रांजैक्शन की फॉर्म में, कि ये इसका ट्रांजैक्शन का है 65,000 पर सेकंड। 65,000 की ट्रांजैक्शन एक सेकंड में ये हैंडल करता है इसका नेटवर्क सोलाना का। फिर ये हमारा आता है डोज कॉइन, उसमें इसको बोलते हैं डोज कॉइन को, पता है किसी को किस कैटेगरी में आता है डोज कॉइन? हाँ जी, मीप सारा तो आपको पता है यार, कहाँ थे पहले? अभी बोल ही नहीं रहे थे। अच्छा, क्या मतलब मीम कॉइन्स के बारे में कुछ बताएंगे? इसको रिसेंटली इलॉन मस्क ने पंप किया था बाय ट्विटर, उसने इसका ट्वीट किया था हाईलाइट डॉज, तो उसका पंप हो गया था ना प्राइस। वेरी गुड, मतलब बिल्कुल, क्योंकि जो मीम कॉइन्स होते हैं ना, उनका कोई भी यूज केस नहीं होता, वो एक तरह से फन में आते हैं, फन में ही चले जाते हैं। तो मीम कॉइन, जो डोज कॉइन था ना, ये मतलब कि काफ़ी पुराना मीम कॉइन है, फर्स्ट मीम कॉइन बना था डोज कॉइन। तो जो वो बता रहे हैं एलन मस्क, तो एलन मस्क इसको काफ़ी सपोर्ट करते हैं और उस वजह से ये पंप हो जाता है। मतलब वैसे इसका कोई यूज़ केस नहीं है, कोई वो नहीं है, मतलब कोई उसका मतलब बेनिफिट नहीं है इसका, लेकिन वो बेनिफिट यही है, अगर आपने परचेस किया होगा तो वो आपका पैसे को इंक्रीज कर देगा। और टोटल अभी मतलब 17,000 प्लस क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में है। और अभी हम मतलब क्रिप्टो में इसके क्या क्या यूसेस है, वही जैसे इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग है, ऑनलाइन पेमेंट के लिए काम आ सकती है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए काम आ सकती है, और डीफाई मतलब फाइनेंस में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अभी इसमें हम बात करने लगे हैं स्कैम्स की, कि क्रिप्टो में कौन कौन से स्कैम्स चल रहे हैं। कि जैसे अभी फर्स्ट स्कैम की बात यही वाली कर लेते हैं इनकी। आप कह रहे थे ना NFT, ट्रेयर NFT के बारे में। तो ट्रेयर NFT में किस किस ने कुछ इन्वेस्ट किया है या अपने 10,000 लगाए हैं, कुछ ऐसा आईडी बनवाई है? नहीं, प्लीज बताइए, थोड़ा सा बताएंगे तो मैं आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दूंगा कि आप अपने पैसे को सेव कर सकते हो। अच्छा, बट ये करते कि लोगों का पैसा इन्वेस्ट करा के, हाँ जी हाँ जी, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ $2 ਜਾਂ $3 ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਥਲੀ ਦਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਪਰ ਡੇ ਦਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। चलो वेरी गुड। मतलब अभी ये तो उन्होंने बताया कि उनको लग रहा है कि स्कैम है, लेकिन जो जिनको नहीं लग रहा स्कैम है वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं कुछ। सर मैं निकाल चुका ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। हाँ जी, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਿਕਾਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, मतलब निकाल ले। हाँ जी, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਵਾਲਟ 'ਚ ਗਾੜੀ ਮੈਂ ਸੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਆ ਰਿਟਰਨ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆਇਆ हाँ जी, हाँ जी। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ। वही मतलब जो स्कैम होता है ना, स्कैम में ये तो नहीं होता कि सारे लोगों के साथ ही स्कैम हो जाता है, लेकिन ये हमें समझना है कि ये एक्चुअल में स्कैम है या नहीं। जैसे वही कह रहे थे कि हमें पता ही नहीं कि उस इंस्टीट्यूट को या उस कंपनी को कौन चला रहा है या कौन नहीं चला रहा उसके पीछे। अगर 2-4 बंदे मेरे जैसे सामने आ भी जाएंगे कि मैं चला रहा हूँ, तो वो मतलब आप वो मेरा कॉइन ले लो, मैं अभी निकाल देता हूँ कॉइन, तो आप ले लोगे मेरा कॉइन? नहीं लोगे ना। तो एग्जैक्टली आपको लेना भी नहीं चाहिए अगर मैं बोलूँ कि मैंने कॉइन निकाला है। तो ऐसे ही वो जो स्कैम है NFT ट्रेयर का, वो बहुत बड़ा स्कैम है, कम से कम 10,000 करोड़ का स्कैम है। तो वो आने वाले दिनों में आप सबके सामने आ जाएगा बड़ी जल्दी। तो प्लीज़ अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, देखिए अगर आपको सिंपली मैं बोलूँगा कि आज आप लोग मुझे 10,000 दीजिए और मैं रेगुलर आपको डेली के $3-3 करके वापस देते जाऊँगा। तो लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा, रेगुलर आपको 3 बंदे जोड़ने हैं। जैसे आज से ना 5-6 साल पीछे चले जाए ना, तो MLM का काफ़ी स्कैम चल रहा था कि ऐसे ही आपने सुना होगा कि एक 3 बंदे जोड़ो, आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, आपको बड़ी अर्निंग होगी। तो वो मतलब उसको सिर्फ मोल्ड करके ना क्रिप्टो को बीच में लेके आके क्रिप्टो को बदनाम करने के लिए कह सकते हैं। तो ये स्कैम्स उन्होंने क्रिएट किए हैं। तो क्रिप्टो का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ उसकी हेल्प से वो आपको स्कैम दिखा रहे हैं। क्योंकि आप सबने सुना होगा कि बिटकॉइन का प्राइस काफ़ी इंक्रीज हो रहा है। तो बिटकॉइन जब 2009 में आया था अराउंड $1 का था, कह सकते हैं 80 रुपीज़ का था, जो कि आज 1 करोड़ के पास पहुंच चुका हुआ है।
तो सबने वो देखा था, तो हमें लगता होगा कि मतलब ग्रीड तो सबके मन में आता है, तभी अब हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं चीज़ों में। तो आप जो NFT का है, ट्रेजर NFT स्पेशली, उसमें इन्वेस्ट ना करें। अगर किसी ने किया हुआ है तो वो टाइम टू टाइम से भी पहले अपने पैसे निकाल ले, तो बेटर होगा आपके लिए। अब आपके साथ बता दें कि जैसे आपके साथ तो अगर आपने निकाल भी लिए तो आपके साथ स्कैम नहीं हुआ। हाँ। लेकिन उसमें क्या होगा कि जिन्होंने आपने आगे लगाया उनके साथ हो जाएगा कभी ना कभी। जब उनका टारगेट हिट हो जाएगा कि हाँ उन्होंने 10 लाख करोड़ बना लिए हैं, उसके बाद कंपनी पूरी हो जाएगी और जिनको आपने जोड़ा है वो रह आपको जाएगा। कहेंगे भाई ये कहाँ फंसा दिया तुमने। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मतलब ठीक है कि हाँ आपने अपने पैसे निकाल लिए, लेकिन किसी को भी मतलब सुजेस्ट ना करो, क्योंकि ये आगे जाके भागने वाले, क्योंकि इनका कोई फंडामेंटल नहीं है। क्रिप्टो में क्या है कि फंडामेंटल चलता है कि अगर कोई कंपनी है, जैसे कोई भी बड़ी कंपनी है, कोई अमेजोन है, वो कहे कि मैंने अपना कॉइन निकालना, अपने सारे शेयर्स क्रिप्टो में दे दिए, तो वो एक फंडामेंटल है कि उसने जो हमारा शेयर प्राइस चलता है वो क्रिप्टो में चलेगा। ऐसे ही जैसे IPOs होते हैं शेयर मार्केट में, तो क्रिप्टो में ICOs होते हैं। तो कंपनीज निकालती हैं ICOs, तो उनके पीछे उनका पूरा टीम होता है, वर्क होता है, काम कर रहे होते हैं। लेकिन जो ऐसी कंपनीज आती हैं वो सिर्फ स्कैम ही करती हैं, MLM। तो मतलब यही हमारा मोटिव है कि कोई भी इसमें ना फंसे। बाकी और स्कैम्स सर बताएंगे आपको। थैंक यू सर। वही अभी स्कैम्स की बात करते हैं। एक फिशिंग स्कैम होता है, जैसे कि आपको फेक ईमेल्स आएंगी वेबसाइट पे आपको, और वो आपको प्राइवेट की मांगेगी, प्राइवेट की और लॉगिन। प्राइवेट की क्या होता है? प्राइवेट की होती है, जैसे कि एग्जांपल ले ले, आपकी जीमेल आईडी है सबकी, तो जीमेल आईडी में जो आईडी है ना, वो आपकी पब्लिक की है। जो आईडी हम किसी को भी दे देते हैं कि हमारा xyz@gmail.com है, वो आपका पब्लिक की होती है। तो वो आप कोई भी मांगे आप दे सकते हो। लेकिन जो प्राइवेट की होती है वो होता है आपका पासवर्ड। तो आपको मेल्स ऐसी आ सकती हैं कि हम ऐसी कंपनी से बात कर रहे हैं, या NFT ट्रेजर या किसी भी ऐसे XYZ कंपनी से, कि आप हमें अपनी प्राइवेट की शेयर करें। और ऐसे बहुत से स्कैम्स सिर्फ मेल के थ्रू नहीं, आपके YouTube पे या आपके YouTube के कमेंट्स में या फेसबुक के कमेंट सेक्शन में भी लोग कमेंट कर देते हैं कि मेरा $500 यहाँ पर पड़ा हुआ है और आपको वो मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा, सिर्फ मुझे आपकी प्राइवेट की चाहिए। जिन लोगों को नॉलेज नहीं होती तो वो अपनी प्राइवेट की सेंड कर देते हैं। और ये प्राइवेट की वगैरह आती कहाँ से है वो आगे मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद है फेक गिव अवेज। वही जो गिव अवेज आपको करेंगे कि आप पार्टिसिपेट करो। अभी ना रिसेंटली जो स्कैम चल रहा है गिव अवेज का, वो है सेंड 1 BTC। आप एक BTC सेंड करो। चलो 1 BTC तो किसी के पास नहीं होगा, यहाँ पे बैठे हम सब लोग। तो BTC के अलावा कुछ और सोलाना कॉइन, XRP, वो बोलते हैं 10 XRP आप सेंड करो, उसके बदले में मैं 20 XRP आपको सेंड करूँगा। वो ऐसा कुछ नहीं होता, ये प्रॉपर स्कैम है। आपने कभी सुना होगा तो ऐसा, तो वो आप कभी किसी को सेंड ना करिए। और एक होते हैं रग पुल, फेक प्रोजेक्ट्स बनते हैं। ये रग पुल वही काइंड ऑफ NFT ट्रेजर भी कह सकते हो आप। फेक प्रोजेक्ट बनते हैं, प्रमोट करते हैं। वो जैसे जैसे कुछ इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उनको क्या करते हैं कि उनको पता है, जैसे अभी मैं बता रहा था कि 10,000 करोड़ का स्कैम है, और अगर वो कोई 100-200 इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ के वो उस कॉइन का या उस प्रोजेक्ट के बारे में प्रमोशन करवा भी देगा अपना, तो वो उसको तो मतलब फिर भी पैसे तो बचने ही है ना। तो वो क्या होगा कि वो प्रोजेक्ट को इतनी हाइप बना देते हैं मार्केट में, सोशल मीडिया में, कि आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत रियल प्रोजेक्ट है, इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, यही मौका, लास्ट मौका है, इसके बाद हम अमीर नहीं बन पाएंगे, तो हम सब इन्वेस्ट कर देते हैं। तो होता क्या है, बस वो रग मार्केट में प्रोजेक्ट आता तो जरूर है, पहले आपको पंप दिखाता है, आप सब फिर पैसे और इन्वेस्ट करते हो, नाल ही 2-3 डेज से वो सारे प्रोजेक्ट पैसे डाउन हो जाते, ਤੁਹਾਡੇ प्रोजेक्ट थले चल जाता। फिर फोर्थ भी चाहता है कि लाइक मालवर, फेक वैलेट्स मैं तुम समझाना आगे। पंप एंड डंप स्कीम्स का भी यही है कि वो पहले प्रोजेक्ट में आपको दिखाएंगे कि प्रोजेक्ट का प्राइस ऊपर जा रहा है, क्रिप्टो का प्राइस ऊपर जा रहा है, आप इसमें इन्वेस्ट करें। जैसे कि मीम कॉइन की बात कर रहे हैं कि अभी मार्केट में मीम कॉइन्स का बहुत ट्रेंड चल रहा है। जैसे एक डोज कॉइन सर ने बोला था, डोज कॉइन तो काफ़ी पुराना कॉइन है और प्रोजेक्ट है, उसकी कम्युनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है
वो मतलब एक्चुअल में अभी सरवाइव कर सकता है मार्केट में। लेकिन जो अभी न्यू मीम कॉइन्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, जैसे अभी करंटली कल का डेटा था 50,000 मीम कॉइन एक दिन में बने हैं। कोई एक XYZ वेबसाइट है, मैं अभी नहीं बता सकता, उस पर 50,000 रोज के मीम कॉइन बन रहे हैं और 50,000 ही रोज के डंप हो रहे हैं। लोग अपना पैसा गंवा रहे हैं। मीम कॉइन्स में आप ना फंसे, आपका पैसा बिल्कुल वेस्ट ही होगा उसमें। और फेक क्रिप्टो एक्सचेंजेस, जैसे कि अभी हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी क्रिप्टो एक्सचेंज पे जाके अपनी आईडी बना के हम इन्वेस्ट करें या इस चीज़ में जाएं। मतलब सभी अपनी क्रिप्टो जर्नी तो स्टार्ट करना चाहते ही हैं, लेकिन हमें किसी को भी नहीं पता कि कौन सी एक्सचेंज जेन्युइन एक्सचेंज है या कौन सी नहीं है। क्योंकि इंडिया में बहुत सारी एक्सचेंजेस चल रही हैं, जैसे CoinDCX है। अभी आपने किसी ने WZIRX का नाम सुना है? WZIRX सुना ना? तो वही आप सबको पता होगा। कोई एक बंदा उठ के बताएगा कि अभी क्या रिसेंटली उसके साथ हुआ है। स्कैम तो नहीं हुआ, लेकिन जो भी हुआ है वो बता सकता है कोई भी बंदा। वरदान जी क्या? अच्छा, हाँ, लेकिन करना मत कुछ उसको। ठीक, कोई किसको? हाँ वही यार, वेरी गुड, बताइए बताइए यहीं से। किन्ने? अच्छा, हाँ जी हाँ जी। ते हुन की है कोई ऐसी लाइक? चलो वेरी गुड। हाँ, पता कि सही कह रहे हो। ये सबसे अच्छी बात है कि कम से कम वो एक्टिव तो हैं, कि उनको पता है कि मार्केट में क्या हो रहा है। सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव लग रहे हैं ये सर, तो बढ़िया अच्छी बात है। तो WZIRX भी काफ़ी ट्रस्टवर्दी एक्सचेंज थी, और हम सब लोगों ने जो भी हम थे, तो उन्होंने अपने पैसे एक्सचेंज पर रखे हुए थे कि क्रिप्टो खरीदने के लिए, बेचने के लिए। तो वो क्या हुआ कि उनका नॉर्मली कोई थर्ड, जो कोरिया, साउथ कोरिया में कुछ हैकर्स थे या कहीं से भी हो सकते हैं, उन हैकर्स ने एक्सचेंज को हैक कर लिया था। तो उस टाइम उस एक्सचेंज पर ऑन चेन 5,000 करोड़ रुपया पड़ा हुआ था लोगों का। जो लोग थे उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट करी थी, वो ऑन चेन सारा शो हो रहा था 5,000 करोड़। तो वो जो हैकर्स थे उन्होंने हैक किया, तो 2,000 करोड़ वो एक सेकंड में उनका उड़ा कर ले गए, हैकर्स थे जो। अब आपके मन में आ रहा होगा इससे अच्छा तो हैकिंग ही कर लेते हैं। लेकिन वो लीगल नहीं है इंडिया में जो वो कर रहे हैं, क्योंकि वो साउथ कोरिया में है और कुछ कंट्रीज अलाउ करती हैं ऐसी हैकिंग को, प्रमोट करती हैं और स्पेशल पैकेजेस भी निकालती हैं। लेकिन हमारे इंडिया में ये चीज़ें बैन है, और मतलब अगर आप करते हो तो पकड़े जाओगे, लाइफ टाइम जेल। तो मैं आपको सजेशन नहीं करूँगा, ठीक है। तो वो हैक हुआ था और 2,000 करोड़ वो लेके भाग गए थे 1 मिनट में। लेकिन वो 2,000 करोड़ था किसका? हमारे जैसे लोगों का था जो हमने इन्वेस्ट किया हुआ था वहाँ पे। तो वो तो सारा, फिर वो क्या हुआ, 2,000 करोड़ तो चला गया, लेकिन पीछे बच गया जो 3,000 करोड़। एक्सचेंज ने क्या किया, वो भी फ्रीज कर दिया। उनका एक ही बटन होता है ऑन ऑफ का, वो ऑफ कर दें तो सारे पैसे फ्रीज हो जाएंगे, कोई भी बंदा विड्रॉ नहीं कर सकता पैसे अपने। वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज का हमने स्टार्टिंग में समझा था कि अगर कोई चीज़ सेंट्रलाइज है, वो कंट्रोल कर रही है, जैसे कि हमारा RBI कंट्रोल कर रहा है पैसे को। अगर मोदी जी आ जाएं 8 बजे बोल दें कि 2,000 के नोट बंद, तो मतलब बंद। अगर जिस में पड़े हैं तो वो जीरो वैल्यू उसकी, ठीक है। वो आपको टाइम पीरियड दे देंगे कि 10 दिन में चेंज कर लो, रश डाल दो बैंक में। तो वो चीज़ें होती हैं सेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज होती हैं, वैसे ही डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजें भी होती हैं। ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज थी, उसके पास कंट्रोल था WZIRX के पास, वो सारा पैसा उन्होंने 1 सेकंड में आपका फ्रीज कर दिया। अभी भी उनके पास 3,000 करोड़ लोगों का पड़ा हुआ है। 18 जुलाई को हैक हुआ था 2024 में, आज फिर से जुलाई आने वाली है अगले 2 महीने में। तो वो अभी तक 1 साल होने वाला है, तो वो सारा पैसा उनके पास पड़ा हुआ है, लोग परेशान हो रहे हैं। तो एक्सचेंजेस भी सेफ नहीं है। अपनी एक्सचेंजेस पर कभी भी कोई पैसा लॉन्ग टर्म पे ना रखें कि आपको लगता होगा कि जो पैसे आपको लगता होगा कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो बड़े सेफ है एक्सचेंजेस पे, वो सेफ नहीं है। आप क्या कर सकते हो उसके लिए, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजों का इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी काफ़ी मार्केट में है, ठीक है। उनका यूज़ करके आप
अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हो। सिर्फ अगर एक्सचेंजेस का यही इस्तेमाल है, अगर आप एक्सचेंज पे आप एक छोटी सी बाई करते हो एक्सचेंज पे जाके, चाहे वो बिनांस है या कोई भी और ऐप है, बिंगएक्स है, अच्छी रिप्यूटेड जो एक्सचेंजेस हैं उनका आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन आप क्या कर सकते हो कि वो हम बाई तो वहाँ पे कर सकते हैं एक्सचेंज पे जाके, तो सीधा वो वहाँ पे ऑप्शन होती है, आप वहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हो अपने डिसेंट्रलाइज वैलेट पे। उससे क्या होगा कि आपकी क्रिप्टो करेंसी जो होगी वो बिल्कुल परमानेंटली सेफ हो जाएगी, आपके पास आ जाएगी, उसके ओनर आप बन जाओगे। डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज का यही है कि सेंट्रलाइज में आप ओनर नहीं होंगे अपनी क्रिप्टो के, ओनर वही रहेंगे। और डिसेंट्रलाइज में अगर वैलेट में, ट्रस्ट वैलेट में आप डाल लोगे, तो ट्रस्ट वैलेट में अगर आप अपने ट्रांसफ़र कर लोगे, ट्रस्ट वैलेट है, फैंटम वैलेट है सोलाना के लिए, और भी काफ़ी वैलेट्स हैं, सेफपाल है वैलेट, उनको यूज़ करके अगर आप उन पे ट्रांसफ़र कर लेते हो तो उसके मालिक आप बन जाते हो करेंसी के, क्रिप्टो के। तो फिर आपसे कोई भी वो चुरा नहीं सकता। चुराएगा तब भी जब आप उसको अपनी प्राइवेट की दोगे। तो और हमारे वैलेट्स में ये सारे वैलेट्स आते हैं, लेजर वैलेट, ट्रेजर वैलेट, और उसमें ये सारे होते हैं कोल्ड वैलेट, और कुछ होते हैं हॉट वैलेट। कोल्ड वैलेट और हॉट वैलेट में यही डिफरेंस है कि जो कोल्ड वैलेट है वो होते हैं ऑफलाइन, आपकी पेन ड्राइव है ना जो, वो एक तरह से कोल्ड वैलेट का काम करती है। लेकिन वो पेन ड्राइव नहीं, ऐसे कुछ डिवाइसेस हैं ऑनलाइन से, ऑनलाइन आप परचेज कर सकते हो। और जो हॉट वैलेट है वो ऑनलाइन वैलेट होता है, आपके मोबाइल में चलता है वो, उसमें मेटामास्क आता है, ट्रस्ट वैलेट आता है, उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हो। लेकिन सबसे ज़्यादा सेफेस्ट कोल्ड वैलेट होते हैं जो कि हैक नहीं हो सकते। और सेकंड मतलब कि आप और स्कैम से और कैसे बच सकते हो, वो है कि आप अपना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हर चीज़ की सिक्योरिटी रख सकते हो, लाइक गूगल ऑथेंटिकेटर यूज़ करके। थर्ड है आपकी जो भी आपको कभी भी कोई यूआरएल होते हैं, तो यूआरएल किसी भी यूआरएल पे आप क्लिक कर देते हो ऐसे रैंडमली, कभी कई बार नहीं ध्यान होता है, ऐसे हम फटाफट काम कर रहे होते हैं तो रैंडमली यूआरएल पे कर देते हैं। यूआरएल में क्या होता है कि वो जैसे बाइनांस की कोई कंपनी है, तो वो अपना जो स्कैमर्स क्या होते हैं, बिनांस का बी या कोई भी वर्ड चेंज करके आपको वो वेबसाइट का फ्रॉड बना देते हैं, मतलब वेबसाइट को क्लोन कर देते हैं। तो आपको लगता है कि जेन्युइन वो रियल वाली वेबसाइट है, तो आप उस पर जाके अपना सारा ट्रेड करते हो, वो आपका सारा हैक हो जाता है। उसके बाद आपका वही प्राइवेट की किसी के साथ शेयर नहीं करनी है आपने। प्राइवेट की होती है और एक सीड फ्रेज होता है। जब आप कोई वैलेट क्रिएट करोगे, चाहे वो हॉट वैलेट या कोल्ड वैलेट, उसमें आपको दो चीज़ें मिलती हैं, प्राइवेट की और सीड फ्रेज। सीड फ्रेज वर्ड्स में होता है, वही पासवर्ड है आपके क्रिप्टो वैलेट का, वो आपने कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना। अगर कोई बोले भी मैं आपको भाई हूँ, बहन हूँ या कोई भी, इवन वाइफ, कभी नहीं शेयर करना। तो और उसके बाद है रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग, मतलब कोई भी इन्फ्लुएंसर या कोई भी आके आपको बोले कि ये क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो, कोई भाई बोले कि भाई NFT ट्रेजर में इन्वेस्ट करो, तो आप कभी भी किसी की बात में मत आए, प्रॉपर रिसर्च करें, नहीं तो आपके साथ स्कैम हो सकता है। और क्रिप्टो पे बहुत बड़े बड़े स्कैम्स हो रहे हैं ऑलरेडी। वही अच्छी एक्सचेंज पे जो आपकी मतलब जिसकी अच्छी रेपुटेशन है, रेपुटेशन मैं बता ही रहा हूँ, वजीरक्स की भी थी लेकिन वो भी भाग गई है। लेकिन फिर भी अगर ट्रस्ट करना है तो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे कर सकते हैं, जैसे बाइनांस है, कॉइनबेस है, क्रैकन है, बायबिट है। अभी बायबिट का रिसेंटली हैक हुआ है कल बायबिट है ना जो, अभी कल इसका रिसेंटली हैक हुआ है। क्रिप्टो का सबसे बड़ा हैक हुआ है $1.5 बिलियन का, $1.5 बिलियन। तो जो हैक हुआ है वो वही साउथ कोरिया के हैकर थे, हैकिंग हमने नहीं करनी, ठीक है, साउथ कोरिया के हैकर्स थे, वो आपका वो पैसा लेके इस एक्सचेंज से भाग गए हैं, $1.5 बिलियन। तभी मैं कह रहा हूँ एक्सचेंजेस पर आप कभी भी अपना पैसा ना रखें। सेफेस्ट मोड ऑफ पेमेंट आपका जो क्रिप्टो है, कोल्ड वैलेट और हॉट वैलेट, और उसमें भी कौन कौन से वो भी मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। मेटामास्क है, ट्रेजर है। नेक्स्ट चलो अब आपके साथ थोड़ा सा प्ले करने का टाइम आया है। मैडम प्लीज आप हेल्प करें। अभी आप लोगों ने जो जो भी यहाँ पे समझा है
और किसी को भी कोई कन्फ्यूजन या कोई क्वेश्चन हो प्लीज़ स्टैंड, कोई रेज करिए हैंड, कोई बताइए कोई क्वेश्चन हो किसी का, कुछ चीज़ नहीं समझ आई या किसी का कोई क्वेरी है, जैसे भाई साहब की थी, वरदान जी की पहले थी, वो सॉल्व होगी उनकी। किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ से मिडल, कोई क्वेश्चन किसी का, कोई क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, कोई वैलेट, कोई ट्रेजर NFT, कोई भी क्वेश्चन किसी का? हाँ जी। वैसे जैसे आप ब्लॉकचेन का बात कर रहे हैं तो आपने पाइकॉइन का सुना होगा, पाइकॉइन का तो यूएस के MIT यूनिवर्सिटी के 2 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने क्रिएट किया था। बट उन्होंने ये किया था लाइक इसको माइनिंग करने के लिए कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज लगते हैं, हैवी कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज। बट उन्होंने ऐसे डेवलप किया कि आप फ़ोन पे डेली टैप करके उसको माइन कर सकते हो। बट कोई भी इसको लिस्टेड नहीं है, लोगों में कन्फ्यूज़न है कि इसको अगर हम बाय कर रहे हैं, इन्वेस्ट किया हुआ है अप्रॉक्स ये 100 करोड़ इन्होंने कर दिया है, तो उतने कॉइन्स हो गए। मेरे पास भी 50 to 80 कॉइन्स है बट विदाउट इन्वेस्टेड, तो हम इसको ना परचेज कर सकते हैं ना एक्सचेंज कर सकते किसी अमाउंट के लिए। तो जैसे इन्होंने अब स्कैम कर सकते हैं कि लोगों ने बहुत पैसा डाला हुआ है इसमें पाइकॉइन का, तो इन्होंने इससे बहुत अर्निंग कर ली है। तो जैसे चाइना वगैरह भी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, हैक करना चाहते हैं पाइकॉइन को। बट मोबाइल से आप भी सोच सकते हो कि माइनिंग मोबाइल में पॉसिबल नहीं है, इसके लिए कंप्यूटेशनल रिसोर्सेस है। तो व्हाट इफ दे स्कैम। आपके कितने कॉइन थे कह रहे? 50 to 80 कॉइन्स मेरे पास। चलो कंग्रेचुलेशन। अभी वेरी गुड क्वेश्चन, पहले तो मैं यही बोलूँगा कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और मैं ये कह रहा था कि अभी 50 to 80 कॉइन्स हैं जो कह रहे हो आप, अभी आप $50 के तो मालिक बन गए हो, कॉइन लिस्टेड हो गए हुए, आपको पता है? हाँ, तो वो अभी, हाँ पता क्या है, जब ये पाई कॉइन आया था ना, तो वही ये माइनिंग जो होती है ना, तो वो काफ़ी हाई अच्छे ग्राफिक वाले कंप्यूटर्स इसके लिए अलाउ होते हैं, मतलब उस पर ही हम माइनिंग कर सकते हैं, जो कि मान के चलो कि कंप्यूटर ही 10 लाख का आता है वो वाला, उस पर हम माइनिंग कर सकते हैं। लेकिन जो इन्होंने पाई कॉइन का बात करी है, वो उन्होंने जब पाई कॉइन बनाया था ना, तो उन्होंने बोला था कि इसकी माइनिंग आप मोबाइल से भी कर सकते हो कुछ, है ना, तो वो इन्होंने लगाई माइनिंग। लेकिन वो क्या है कि जैसे मतलब एक तरह से वो भी स्कैम ही था, ठीक है। जो लोग पहले इन्वॉल्व हो गए, उन्होंने अपना टाइम इस पे इन्वेस्ट किया। ये बेसिकली जो माइनिंग है, 2 चीज़ों का कंपैरिजन है, आपका इन्वेस्टमेंट जो आप मशीन्स की ले रहे हो, और दूसरा आपका टाइम। तो इसमें उन्होंने क्या किया कि सबको पता है कि अब मशीनें 10-10 लाख की, 5-5 लाख की मशीन आएगी, हम ऐसा स्कैम बना देते हैं कि टाइम तो सबके पास है और सबको हमको लगता है कि फ्री भी है ना, जो कि नहीं है एक्चुअल में। तो वो इन्होंने इन्वेस्ट किया, ऐसे बहुत सारे करोड़ लोग हैं, उन्होंने इन्वेस्ट किया, ये अपना टाइम दिया उसको पाई कॉइन को। तो पाई कॉइन से हुआ क्या है, वो लोग जो भी वो मतलब पैसा उन्होंने इकट्ठा किया है, सारा पैसा तो वो उन्होंने इकट्ठा कर लिया, और इनको ड्रीम्स भी ऐसे दिखाए थे पाई कॉइन वालों ने कि जब हम लिस्ट करेंगे ये बिटकॉइन को भी पीछे छोड़ जाएगा, और इसका हम मार्केट वैल्यू कोई $60,000 बोल रहा था, कोई $5,000, कोई $500 बोल रहा था। लेकिन उन्होंने फिर इनका दिल रखने के लिए पाई कॉइन मार्केट में डाल ही दिया, और उसकी सप्लाई रख दी है $100 बिलियन की। तो वो जितनी सप्लाई ज़्यादा होती है ना कॉइन की, उतनी ही उसकी वैल्यू कम होती है। तो अगर वो उसकी सप्लाई अगर कम रख देते, मतलब इनका सोच लेते जिसने वो माइन किया है, तो अगर सप्लाई कम रख देते तो उसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा होने के चांसेस थे। लेकिन वो भी एक्चुअल में होते नहीं है, लेकिन बन सकते थे। लेकिन उन्होंने सप्लाई ही इतनी ज़्यादा रख दी है कि अब वो उसकी मार्केट वैल्यू $1 निकली थी, तो वो थोड़ा सा जब फ्लक्चुएट हुआ $2 तक गया, अब वो $1 के भी नीचे है प्राइस उसका, ठीक है। तो वही आप ऐसे किसी भी स्कैम्स में मत फंसे, ये सारे स्कैम्स होते हैं। लेकिन मैं आपको एक इन्वेस्टमेंट कर मतलब आपकी क्रिप्टो जर्नी जिसने नहीं स्टार्ट करी यहाँ पे, उनके लिए मैं एक मतलब बड़ी अच्छी चीज़ बता रहा हूँ आपको। आपने अगर क्रिप्टो जर्नी स्टार्ट करनी है, जैसे वही सबके पास पैसे कईयों के पास होते हैं, कईयों के पास नहीं भी होते, लेकिन सबके पास टाइम होता है। तो आप अपना टाइम दे के क्रिप्टो को या ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में आकर आप क्या कर सकते हो, अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। कैसे टाइम देना है? एयर ड्रॉप्स सुना सबने? हाँ, एयर ड्रॉप्स में आप इन्वॉल्व हो सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो। बहुत सारे एयर ड्रॉप्स आते हैं, लेकिन इसमें भी स्कैम्स होते हैं। प्लीज़ थोड़ा सा रिसर्च करके, अगर आपने कौन से एयर ड्रॉप में इन्वेस्ट करना है, कौन से एयर ड्रॉप पे नहीं करना, आपको एक्चुअल में
कहाँ से पता लगेगा? आप फॉलो कर सकते हो क्रिप्टो का गुरु, ठीक है। तो वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी, मतलब हमारे सोशल मीडिया के पेजेस भी हैं, सभी जगह पे आप जाके हमें फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे हम रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स देते रहते हैं कि किस प्रोजेक्ट पे आप इन्वेस्ट करो या ना करो, ठीक है। हमारा प्रॉपर उस पर प्रॉपर रिसर्च होती है, और कोई भी फॉल्स इन्वेस्टमेंट के आपके मतलब हम नहीं बता सकते। जैसे ट्रेजर NFT का हम आपको बता रहे हैं कि ये प्रॉपर स्कैम है, अगर आप बचा सकते हो अपने पैसे तो बचा लीजिए। सर प्रॉपर नहीं रखते ना, जिन्हें का ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਿਨੀਮਮ ਆਪਾਂ $50 ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਅਬਾਹ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਦੇ। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो अभी भी मान रहे हैं कि जो है कि मतलब डाल दिया हुआ है, जो अर्निंग हो रही है ठीक है, मतलब प्रोसेस तो यही होता है कि जो अर्न कर रहे हैं वो तो निकालते जाओ। तो लेकिन बात मेन ये है कि है स्कैम, कभी भी वो आपके फ्रीज हो सकते हैं। हाँ ठीक है, मतलब काइंड ऑफ ये है कि आप लुटेरों को लूट रहे हो, लूटो। हाँ, वो लुटेरे हैं, वो आपको लूटने आए, आप उनको लूटो, लेकिन एक्चुअल में वो लास्ट में स्कैम ही है, ठीक है, वो ध्यान रखना आप। और आप एयर ड्रॉप्स में इन्वॉल्व हो सकते हो। एयर ड्रॉप्स में क्या होता है, वो आपको मतलब एक कुछ टास्क देते हैं कि वो कुछ दो तरह के टास्क होते हैं, कुछ थोड़े से एडवांस लेवल के टास्क होते हैं, कुछ सिंपल टास्क होते हैं। सिंपल टास्क क्या होते हैं कि आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो करो, और अपनी ये एक कमांड होती है छोटी सी, ये अपनी गूगल ब्राउजर पे एक्सटेंशन को रन कर दो, ये आप स्कैन भी करते जाओ साथ साथ। क्विज आपका है, स्कैन करके क्विज सॉल्व करो, ये आज का आपका एयर ड्रॉप ही है। जो आपने अभी सुना है, सीखा है थोड़ा बहुत, उसी के बिहाफ पे है ये सारा क्विज आपका। अरे सभी अपना अपना सॉल्व करो प्लीज, मतलब शोर मत करो प्लीज। स्कैन करें, उसके बाद आपको शो होगा, अपना इंफॉर्मेशन फिल करें, आईडी। एक बहुत ही इंफॉर्मेशन अच्छी देने वाले हैं, ये हमारे टेक्निकल हैं, ये सारी एप्लीकेशन यही हमारे बनाते हैं सर, हरद सर। ये बताना चाहेंगे कि कैसा वो वर्क कर रहे हैं Web3 में। हेलो सर, हम जो भी बना रहे हैं अभी Web3 पे बना रहे हैं, जो भी अभी हमने क्रिप्टो करेंसी देखी है, इसमें और भी ज्यादा डोमेन्स है, जैसे DeFi हो गया, DEX हो गया, और भी समथिंग जो भी है। तो हम आपको ये इसीलिए इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं कि आप अवेयर हो कि हम इसमें क्या क्या नया कुछ कर सकते हैं। कोई नई एप्लीकेशन बनानी है, कोई वेबसाइट बनानी हो, जैसे फेसबुक, यूट्यूब जो भी चल रहा है इसमें, तो हम उसका जो भी डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर टेक्नोलॉजी नहीं यूज करके, कोई भी डेटा कोई भी हैक नहीं होगा किसी का इस पे। तो हम सभी, आप अपने आइडियाज दो, हम क्या क्या बना सकते हैं इसमें, कुछ भी इनोवेशन करनी हो इस डोमेन में, इस टेक्नोलॉजी को यूज करके आप कुछ भी बना सकते हो, आप अभी कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो सबके। मतलब उनका कहना है कि किसी को कुछ भी ब्लॉकचेन के ऊपर बनाना चाहते हैं, जैसे अभी हमारी तो नॉर्मली क्रिप्टो का guru.com है, उस वेबसाइट पे जा क्रिप्टो का गुरु, हाँ यही वाली। और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे हम सारे प्रोजेक्ट्स अपने अपडेट करते रहते हैं। और नहीं, वो बोर्ड्स का बता सकते हो जो आपने बोर्ड्स? वो तो हमने ट्रेडिंग बोर्ड्स बनाई थी अपनी खुद की इन हाउस, जो भी हम ट्रेडिंग बोर्ड्स जो भी हम ट्रेड करते हैं वो अपने बोर्ड्स के थ्रू बनाने की कोशिश की है, थोड़ा प्रॉफिट भी हो रहा है। तो इसीलिए हम आपको भी कह रहे हैं कि अगर आपको कुछ लगता है कि कोई नई एप्लीकेशन ऐसी बननी चाहिए कि जैसे बॉडीगा सर कह रहे थे कि किसी भी फ्रॉड ना हो, कि कोई गलत वोट ना कर दे, कि आप अगर आप वोट डाल रहे हो 10 साल के बाद भी देखोगे आपका वोट जिस बंदे को गया वही बंदा सेलेक्ट हुआ कि नहीं। तो इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आपको कोई आइडिया आता है, कोई बनाना है कुछ, जो भी हम हमसे डिस्कस करें, आइडिया दें अपने, तो हम कोलैबोरेशन लेंगे आपके साथ। मतलब किसी का भी कोई यूनिक आइडिया किसी के माइंड में चल रहा है तो वो शेयर भी कर सकता है हमारे साथ। कोई यूनिक आइडिया कि कैसा कोई करप्शन चल रही है कहीं पे, कि इस करप्शन को हम ब्लॉकचेन की हेल्प से रोक सकते हैं, कोई एनी आइडिया किसी के पास? वोटिंग का जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि कैसे स्कैम रोक सकते हैं, कि जैसे EVM हैक का बताया था मैंने आपको। मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, मतलब आप सबके लिए अभी हम 3 विनर्स निकालने वाले हैं, लेकिन 3 विनर्स के अलावा भी जो हमारे यहाँ पर सब बैठे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है,
उनके लिए मतलब क्या मैं एक और रिवार्ड दे सकता हूँ कि लाइक अगर आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे हमें फॉलो करते हो तो आज आपने जो भी सीखा है यहाँ से, चाहे 5%, 10%, 100%, जिसको जो मिला है कुछ सीखने के लिए आज यहाँ पे, तो वो सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे जाके अपने हमें वहाँ पे टैग कर सकता है, मेंशन कर सकता है, और जो भी मेंशन करेगा हमें वहाँ पे उसको मैं 1-to-1 कंसल्टेंसी दूंगा फ्री में, और उसको मैं प्रॉपर गाइड करूँगा देना। बहुत सारे बच्चों ने ना बहुत बढ़िया किया है, बहुत अच्छा भी है, बट अब हमें तो 3 ही विनर्स निकालने हैं, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज है कि सबने पार्टिसिपेट किया और सभी के अच्छे मार्क्स थे इसमें, कि सभी ने कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन गेट करी है आज। बहुत बढ़िया चीज है, और हम 3 विनर्स जो निकाल रहे हैं उनका नेम है राणा अनमोल। कौन है फर्स्ट बताए? वेरी गुड, प्लीज स्टेज पर आइए। मतलब आज आपने क्या सीखा यहाँ से? सर बहुत कुछ सीखा है। चलो वेरी गुड, आपने अच्छा पार्टिसिपेट किया और आपके काफ़ी मतलब फुल मार्क्स ही आए हैं उसमें, और थैंक यू सो मच, आपने पार्टिसिपेट किया और जीता अपना। एक फोटो तुसी भी आओ, एक गिफ्ट दो ना। सेकंड वन इज गुरशरण कौर। गुरशरण कौर मैम, प्लीज क्लैप। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपने सीखा कुछ है यहाँ से? ट्रेनिंग के बारे में। वेरी गुड, ठीक है मैम, थैंक यू। जिसको नहीं मिलता है गिफ्ट उसको समझो ज़्यादा इंपॉर्टेंट गिफ्ट मिल रहा है कंसल्टेंसी, कि आपकी नॉलेज और बढ़ेगी कंसल्टेंसी करके। और जिसको मिल भी गया वो भी कर सकता है, कंसल्टेंसी कर सकता है। और थर्ड जो विनर है मिस्टर सिंह, चरणप्रीत सिंह। ओह भाई, वेरी गुड सर, कंग्रेचुलेशंस। तो स्टूडेंट्स, सबने कैसा रहा आपका इवेंट आज का? थैंक यू सो मच।